اوباڑو سے خبر شامل کریں گے ہمارے نمائندے راہب علی رند کی رپورٹ کے مطابق اوباڑو میں ہزارہ برادری کے ساتھ اظہار یکجہتی کے لیے اور سانحہ مچھ کے خلاف اوباڑو میں احتجاج کیا گیا۔ شیعہ علماء کونسل اوباڑو ضلعی نائب صدر رضا مہدی رند کی جانب سے قومی شاہراہ بلاک کر کے احتجاج کیا گیا۔ اوباڑو میں ہزارہ برادری کے ساتھ اظہار یکجہتی کے لیے بلوچستان کے علاقے مچھ میں دہشت گردوں کا ہزارہ برادری کے مزدور پیشہ لوگوں کا بے گناہ بھائیمانہ قتل، عوام کے خلاف جماعت اہل تشیع اوباڑو، جماعت شیعہ علماء کونسل اوباڑو کی جانب سے سید اللہ ورائے شاہ ساجد علی دایو اور رضا مہدی رند کی قیادت میں احتجاج کیا گیا۔ قیادت میں سینکڑوں افراد نے الحسینی امام بارگاہ سے مین چوک اوباڑو تک احتجاجی ریلی نکالی اور جماعت شیعہ علماء کونسل اوباڑو نے رضا مہدی رند کی قیادت میں اوباڑو قومی شاہراہ بلاک کر کے احتجاج کیا۔ اللہ ورائے شاہ اور رضا مہدی رند اور دیگر نے خطاب کرتے ہوئے کہا، بلوچستان کے علاقے مچھ میں اہل تشیع کے ہزارہ برادری کے لوگوں کا بھائیمانہ قتل عام نسل کشی کی شدید الفاظ میں مذمت کرتے ہیں۔ 5 روز گزر گئے ہیں لیکن شہداء کی میتیں کوئٹہ کی سڑکوں پر وزیر اعظم عمران خان کی راہ تک رہی ہیں۔ لواحقین کا مطالبہ ہے وزیر اعظم آئیں گے پھر شہداء کی تدفین کی جائے گی، لیکن 5 روز گزرنے کے باوجود بھی ریاست مدینہ کے دعویدار وزیر اعظم کوئٹہ لواحقین کے پاس جانے کی زحمت نہیں کر رہے۔ کوئٹہ میں -6 سخت سردی بھی ہے۔ ہزارہ برادری کے افراد امن پسند اور مزدور پیشہ لوگ ہیں۔ کچھ سال پیچھے جائیں تو اہل تشیع سے وابستہ ہزارہ برادری کے ساتھ پیش آنے والا یہ کوئی پہلا واقعہ نہیں ہے۔ اگر صرف پچھلے 10 برسوں پر نظر دوڑائیں تو 2011 سے لے کر 2019 تک کئی مرتبہ اس محنت کش طبقے کو دہشت گردی کا نشانہ بنایا گیا۔ کئی مرتبہ ہزارہ برادری نے اپنے شہید ہونے والے لوگوں کے لواحقین کی میتیں اور کفن شاہراہوں پر رکھ کر نہ صرف احتجاج کیا بلکہ حکومت اور ریاست سے اس پے در پہ پیش آنے والے واقعات سے متعلق جواب بھی طلب کیا، لیکن بدقسمتی سے کبھی بھی اس برادری کے ساتھ انصاف نہیں ہو سکا۔ احتجاج کرنے والوں کا مزید کہنا تھا، اگر وزیر اعظم عمران خان ہزارہ برادری کے بے گناہ شہید افراد کے لواحقین کے ساتھ اظہار ہمدردی کے لیے کوئٹہ نہیں جائیں گے اور ان کے ساتھ انصاف نہیں کریں گے تو ہم پورے ملک میں سراپا احتجاج ہو جائیں گے اور پورے ملک میں پہیہ جام کر دیں۔ ہم پرامن لوگ ہیں۔ ہم چیف جسٹس آف پاکستان، وزیر اعظم پاکستان، آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ سے اپیل کرتے ہیں بلوچستان میں شیعہ کمیونٹی کا قتل عام بند کرایا جائے اور واقعے میں ملوث افراد کے خلاف فی الفور سخت قانونی کارروائی کی جائے اور انہیں سخت سزا دی جائے۔ ٹنڈوالہ یار سے خبر شامل کریں گے ہمارے بیورو چیف اعظم قائم خانی کی رپورٹ کے مطابق ایک اور دھرنے میں اضافہ۔ ٹنڈوالہ یار میں سانحہ مچھ کے خلاف 20 گھنٹوں سے قومی شاہراہ پر شیعہ تنظیموں کا دھرنا جاری، جبکہ پریس کلب کے سامنے وحدت المسلمین نے دھرنا دے دیا۔ دان بجانے والی سردی میں رات بھر مظاہرین دھرنے میں بیٹھے رہے۔ حکومت کے خلاف شدید نعرے بازی، 20 گھنٹوں سے قومی شاہراہ بند، مظاہرین نے دھرنا دے کر خیمے لگا لیے۔ بلوچستان کے علاقے مچھ میں ہزارہ برادری کے 11 مزدوروں کو قتل کیے جانے کے خلاف ٹنڈوالہ یار کے کیریا شاہ کے مقام پر دھرنا مولانا غلام عباس جویو، غلام رسول اللہ شاری، ڈاکٹر راشد لنجوانی اور دیگر کی قیادت میں جاری۔ بات کر رہے ہیں تو وزیر اعظم آئے، خود وزیر اعظم نے نعرہ لگایا تھا مدینہ ریاست مدینہ ریاست مدینہ۔ نعرہ لگانا صرف کافی نہیں ہے، اس پہ عمل کرنا لازم ہے۔ اگر مدینہ ریاست میں وہ ہے اور وہ مدینہ کا نعرہ لگائے تو پورا تو کرے۔ یقیناً افسوس ہو رہا ہے، اس وقت پورا عالمی میڈیا اس چیز کو دیکھ رہا ہے کہ ہمارے وزیر اعظم کو ذرا بھی احساس نہیں ہے کہ اس کے ملک کے اندر اتنے 11 مظلوم شہید کیے گئے ظالمانہ طریقے سے، اور لوگ 6 دن سے -6 سینٹی گریڈ میں بیٹھے ہوئے، وہ مائیں بہنیں بیٹیاں، کیا وہ پاکستان کی نہیں ہیں؟ کیا ان کو اتنا بھی احساس نہیں ہے کہ یہ وزیر اعظم صاحب اپنے گھر سے نکلے اور ان کے آنسو پوجے؟ 1000 سے زیادہ ہمارے ہزارہ کے مومنین جو ہیں ان کو شہید کیا گیا۔ مستونگ ہے کتنا؟ اس بے درد وزیر اعظم کو یہ غیرت نہیں ہے، احساس ان کو نہیں ہے کہ وہ آج بھی جو ہے وہ لاشیں جو ہے وہ رکھے ہوئے ہیں وہ سردی کے اتنے ماحول میں، لیکن ان کو کوئی وہ درد نہیں ہے۔
कोयटा मच में हजारा बिरादरी एक बार फिर दहशत गर्दी का शिकार, 10 से ज्यादा अफराद लुकमा अजल बन गए। कयामत का पहाड़ टूट पड़ा। हजारा कबीले के होने वाले जुल्म के खिलाफ आज ओबाड़ो मरकज वलायत अली की जानिब से ओबाड़ो शहर में रैली निकाली गई। रैली की क़यादत सैयद अल्लाह वरायो शाह, सैयद असद शाह बुखारी, जिला सदर मीर इम्तियाज हुसैन रिंद, तालुका सदर जवार शौकत हुसैन रिंद ने की। और उनका मजीद कहना था कि हम हजारा बिरादरी के गम में बराबर के शरीक हैं और इंसानियत सोज वाक़े की शदीद अल्फाजों में मजम्मत करते हैं। वज़ीर आला इमरान खान से मुतालबा करते हैं कि कोयटा जाकर उनसे इजहार यकजहती करें और उन दहशत गर्दों को पकड़ कर उनको सख्त से सख्त सजा दी जाए। गुज़श्ता रोज कोयले के कानों में मजदूरी करने वालों को दहशत गर्दों ने चुन चुन कर दरिंदों ने बेदर्दी से कत्ल कर दिया। कई दिन गुजरने के बावजूद शहीदों की तदफीन न हो सकी। सख्त सर्दी इतनी जहां पारा नुक्ता जमात से भी कम। अपने बच्चों के साथ ये मुतालबात कर रहे हैं, जब तक इन दहशत गर्दों को कैफिर किरदार तक नहीं पहुंचाया जाएगा तब तक हम अपने प्यारों की तदफीन नहीं करेंगे। क्योंकि आज तक सारी हुकूमतें हजारा कबीले को जीने का हक नहीं दे सकी क्योंकि नाकाम रही। क्या ये लोग सिर्फ मारे जाने के लिए पैदा हुए हैं? इस मुल्क में क्या लोग सिर्फ लाशें उठाने के लिए पैदा होते हैं? क्या इन लोगों को जीने का कोई हक नहीं? कभी उनको बसों से उतार कर शिनाख्त करके मार दिया जाता है, कभी उनके बाजारों पर हमले किए जाते हैं, उनकी बच्चियों की जिंदगियां उजाड़ दी जाती हैं। हमेशा हजारा बिरादरी से सुतेली माँ जैसा सलूक रखा है। हमारे तमाम सियासतदानों ने सिर्फ हजारा तबके पर होने वाले मजालिम का मजाक उड़ाया है और हर बार हजारा कबीले को नजरअंदाज किया जा रहा है। कौन इनके जख्मों पर मरहम रखेगा? कौन इनको यकीन दिलाएगा कि उनकी जिंदगियों को किसी दहशतगर्दी से कोई खतरा नहीं है? कौन देगा गारंटी कि इनके बच्चियों को कोई यतीम नहीं करेगा? और कौन यकीन दिलाएगा कि इन माओं को कि अब उनके खानदानों को नहीं मारा जाएगा? आखिर कब तक ये लोग कुर्बान होते रहेंगे? गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान का सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस बलोचिस्तान के चीफ जस्टिस वजीर आला के मुताबिक हजारा शिया कम्युनिटी जा जेके नाहक शहीद थिया आहिनि उन्हनि जे कातिलनि खे फिलफूर गिरफ़्तार कयो वञे ऐं उन्हनि जे लाइक़ीन सां वेही करे मुज़ाकरात कया वञनि। ऐं वज़ीर आज़म खां असां मुतालबो कयो था त फिलफूर कोयटा वञे। जे कोयटा न रहे त सुभाणे इन एहतजाज जो वसीह प्रोग्राम कयो वियो आहे। वज़ीर आज़म न वियो त सुभाणे हिते तमामु मस्त कलंदर थींदी ऐं धरनो पेश कयो वेंदो। असां गवर्नमेंट खां अपील कंदासीं त वञी करे कोयटा सारे ते जेके लवाकीन वेठा आहिनि धरने ते उन्ही सां मुज़ाकरात कनि ऐं उन्हनि जा फिलफूर गिरफ़्तार कया वञनि, कातिल गिरफ़्तार कया वञनि। हज़ारा जे कातिलनि ते दावत रुख करते चले गुजरांवाला का, जहां पर हुकूमत पंजाब की जानिब से जगह जगह सहूलत बाजार लगाए गए हैं। हमारे ब्यूरो चीफ शाहजेब मुगल वहां पे मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे और पूछेंगे, जी शाहजेब बताइएगा सहूलत बाजारों में क्या क्या सहूलियात मौजूद हैं? हाँ जी साहब, बिल्कुल इस वक्त हम मौजूद है गुजरांवाला के मेन सहूलत बाजार में, जो सा हुकूमत पंजाब की जानिब से जो सा PTI हुकूमत की जानिब से लोगों को सस्ती और मेयारी चीज़ें मुहैया करने के लिए यहाँ पे इस वक्त मौजूद है। फतोमट के मेन जो से है वो सहूलत बाज़ार में यहाँ पे जो सी है लोगों की बहुत बड़ी तादाद में यहाँ पे बाज़ार का रुख किया है और मेयारी चीज़ें जो सी हैं इनको मैसर की जा रही हैं। घी, आटा, चीनी जो सी मेन चीज़ें हैं वो बाज़ार के निस्बत यहाँ पे रियायत फरोख्त की जा रही हैं। दालें, सब्जियाँ वगैरह और यहाँ हत्ता कि गोश्त तक जो है वो आवाम की सहूलत के लिए सस्ते रेटों पर यहाँ पे मुयसर किया गया है। जी, कैमरामैन जमील के साथ OnePlus न्यूज़ गुजरांवाला। खबर शामिल करते हैं सरगोदा से। एम एहसानुल हक की रिपोर्ट के मुताबिक ख्वाजा इंसार हुसैन ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा है कि मैं थाना अर्बन एरिया मोहम्मदी कॉलोनी सरगोदा का रिहायशी हूँ। मैं भीख मांगकर गुजारा करता हूँ। गुंडे बदमाश मेरे घर में दाखिल होकर सामान चोरी करके फरार हो गए, जिसकी FIR 622/20 ज़ेर दफ़ा 452/380 थाना अर्बन एरिया दर्ज हुई। पुलिस ने मुल्जिमान गिरफ्तार नहीं किए। आला हुकाम से अपील है मुझे कत्ल होने से बचाया जाए और मुझे तहफ़्फ़ुज़ दिया जाए। मैं मोहम्मदिया कॉलोनी का रहने वाला हूँ। मुझे अर्बन एरिया थाना लगता है। मैं सारा दिन थाने में बैठा रहता हूँ, लेकिन मेरी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। मैं IG पंजाब साहब ठीक और तमाम पुलिस के अफसरान जो बड़े हैं, जो भी रहते हैं, मैं तमाम को मैसेज कर चुका हूँ और DPO साहब को भी और RPO साहब सरगोदा को भी कर चुका हूँ, लेकिन मेरी कोई सुनवाई नहीं दे रही। और जो झूठ है वो लिख कर अदालतों में और इधर उधर ये पुलिस वाले अर्बन एरिया वाले पेश करते हैं तो मेरा केस को खारिज कर दिया गया है। मैं IG पंजाब साहब से अपील करता हूँ कि मेरे साथ इंसाफ किया जाए
कि इससे पहले कि मुझे वो कत्ल कर दें, मुझे कोई तहफ़्फ़ुज़ नहीं दिया जा रहा है। मेरे मुलाजमों को मारा जा रहा है और उनसे चोरी करवा के मेरा बच्चा कुच्चा जो पैसा है वो सारा उन्होंने छीन लिया। खबर शामिल करते हैं हमारे नुमाइंदे आमिर शहजाद लक की रिपोर्ट के मुताबिक महफिल ज़िक्र हबीब खुदा बसिलसिला शादी खाना आबादी 16 जनवरी बरोज़ हफ्ता बाद नमाज इशा रिहाइशगाह बिशारत अली गोराया ज़िला फौज अब्बास तहसील हारूनाबाद में मुनक्किद की गई है। तमाम दोस्त अहबाब को शिरकत की अपील की जाती है, जिसमें तिलावत कलाम पाक, हाफिज़ कारी नदीम अतारी, सनाख्वान मुस्तफ़ा, शाहिद फ़ारूक, ख़तीब इस्लाही मुआशरा, हक़ व सदाकत, हज़रत अलामा मौलाना मोहम्मद ज़िकाउल्लाह चिश्ती, फ़ाज़ल जामिया महरिया अमीरिया अहमद शरीफ खिताब फरमाएंगे। इसके अलावा नकीब मोहम्मद उस्मान हैदरी भी खिताब फरमाएंगे। मुरीद शाख से हमारे वन प्लस न्यूज़ के नुमाइंदा मलिक बिलाल अहमद की रिपोर्ट के मुताबिक एसएसपी घोटकी जनाब उमर तुफैल साहब की हिदायत पर घोटकी पुलिस का रूपोश, इश्तिहारी और दीगर जराइम पेशा अफराद के खिलाफ क्रैकडाउन, मुरीद शाख थाना खंबड़ा के SHO अतहर अली की ज़बरदस्त कार्रवाई, एक बड़ा गैंग गिरफ्तार करके लॉकअप कर दिया गया। थाना खंबड़ा पुलिस ने दौरान एक गश्त खुफिया इत्तला पर कार्रवाई की। खबर शामिल करते हैं मंडी बहाउद्दीन से हमारे नुमाइंदे अरशद महमूद की रिपोर्ट के मुताबिक मंडी बहाउद्दीन में पुलिस का थैलीसीमिया के मरीज बच्चों के लिए ब्लड डोनेशन कैंप का इनेकाद। इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस पंजाब इनाम गनी के विजन के मुताबिक और रीजनल पुलिस ऑफिसर गुजरामाला रियाज नसीर गाड़ा की हिदायत पर डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर मंडी बहाउद्दीन सैयद अली रज़ा की ज़ेर निगरानी मंडी बहाउद्दीन पुलिस अवामी खिदमत में पेश सुंदस फाउंडेशन के ताउन से मंडी बहाउद्दीन पुलिस की जानिब से थैलीसीमिया की बीमारी में मुब्तला मरीज बच्चों के लिए जाहिद महमूद गोंदल शहीद पुलिस लाइन में ब्लड डोनेशन कैंप लगाया गया। अफसरान और जवानों ने थैलीसीमिया के मरीज बच्चों के लिए खून के अतियात दिए। घोटकी से हमारे ब्यूरो चीफ मजहर अहमद सिद्दीकी की रिपोर्ट के मुताबिक घोटकी कायद-ए-अवाम शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो की 93वीं सालगिरह के मौके पर ज़िला डेप्यूटी इत्तलात सेक्रेटरी अब्दुल मजीद लाखों की जानिब से एक तकरीब मुनक्किद की गई, जिसमें पीपल्स पार्टी ज़िला घोटकी के सदर मीर बाबर खान, जनरल सेक्रेटरी सिकंदर अली लाखों, ज़िला डेप्यूटी इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी अब्दुल मजीद लाखों, मीर हमजा खान संदानी, दादन खान मेहर, सैयद बरकत शाह जेरानी, अब्दुल गनी लाखों, एडवोकेट अब्दुल हफीज़ मेरानी, मोहम्मद हसन चाचड़, गुलाम नबी वसीर, अब्दुल रशीद मिलहन, सैयद अब्दुल्ला शाह समेत पीपी के कारकुनान और जयालों ने बड़ी तादाद में शिरकत की। इस मौके पर तकरीब में शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो की 93वीं सालगिरह का केक भी काटा गया। सिकरेंट प्रेस क्लब की जानिब से सिंध के मारूफ शायर, अदीब और दानिश्वर सिकरेंट प्रेस क्लब के सदर मोहम्मद सदीक मंगियों के एहसास में सिकरेंट प्रेस क्लब के हॉल में तकरीब मुनक्किद की गई। हमारे नुमाइंदे गुल मोहम्मद लगारी की रिपोर्ट के मुताबिक इस मौके पर सिकरेंट प्रेस क्लब के हॉल में तकरीब मुनक्किद की गई। सिकरेंट की सियासी, समाजी और सहाफ़ी बरादरी के लोगों ने बड़ी तादाद में शिरकत की। तकरीब को सिकरेंट प्रेस क्लब के सदर मोहम्मद सदीक मंगियों ने खिताब करते हुए कहा, अब ज़रूरत है कि नौजवानों को अपनी जिम्मेदारी संभाल कर काम करना होगा। आज सिंध के हालात देखकर महसूस होता है हमारी वो हालत है जो दरिया किनारे बैठे हों और किसी भी वक्त मौज आकर बहा ले जाए, और इस हालत के जिम्मेदार हम सब लोग हैं। हम इतना तो कर सकते हैं कि बिकाऊ ना हो, अपना किरदार बनाएं। इस मौके पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा रईस नूर अहमद लाखों का कहना था, सिकरेंट एक तारीखी शहर है, यहाँ पर तहरीकों की शुरुआत हुई। मोहम्मद सदीक मंगियों खुद एक तारीख है, उन्होंने हमेशा नौजवानों को आगे लाकर किरदार अदा करने की कोशिश की। आखिर में मोहम्मद सदीक मंगियों की सालगिरह का केक काटा गया, जबकि तकरीब में आने वाले मेहमानों ने मोहम्मद सदीक मंगियों को सालगिरह की मुबारकबाद देते हुए सिंध की सकाफत, अजरक और फूलों के तोहफे पेश किए। घोटकी से हमारे वन प्लस न्यूज़ के ब्यूरो चीफ गुलाम अली रिंद की रिपोर्ट के मुताबिक घोटकी सिटी में दूसरे रोज पे इंक्रोचमेंट ऑपरेशन जारी है। असिस्टेंट कमिश्नर माजिद अली माको की हिदायत पर SHO घोटकी कमर अब्बास रिंद की सरबराही में इंक्रोचमेंट फोर्स के हमरा दूसरे रोज भी घोटकी सिटी में सरकारी जमीनों और प्लॉट्स पर कब्जा माफिया के खिलाफ सख्त ऑपरेशन किया गया, जिसके बाद सरकारी मशीनरी के इस्तेमाल के बाद गैर कानूनी मकानों को तोड़ा गया। असिस्टेंट कमिश्नर माजिद अली माको और SHO कमर अब्बास रिंद ने वन प्लस न्यूज़ से गुफ्तगू करते हुए बताया कि हमें हाई कोर्ट सिंध का हुक्म है, जिसके बाद
पूरा जिला घोटकी में इंक्रोचमेंट ऑपरेशन कर रहे हैं। और उनका मजीद कहना था कि हम जिला घोटकी के आवाम को ये बार बार इत्तलात कर रहे हैं कि कानून को हाथ में ना लें और सरकारी प्रॉपर्टी पे कब्जा खत्म कर दें, चाहे क्योंकि कोई पावरफुल लोग हों, कानून के मुताबिक रियायत किसी के लिए भी नहीं की जाएगी। घोटकी से हमारे वन प्लस न्यूज़ के नुमाइंदा मजहर अहमद सिद्दीकी की रिपोर्ट के मुताबिक मच वाक़े के खिलाफ शिया तंजीमों मजलिस वहदतुल मुस्लिमीन, असगरिया इल्म व अमल तहरीक पाकिस्तान और असगरिया स्काउट्स ऑर्गेनाइजेशन की जानिब से मरकजी इमाम बारगाह मंजिल मेहंदी से प्रेस क्लब तक एहतजाजी रैली निकाली गई। रैली की क़यादत मौलाना पहलवान अली संगड़, मौलाना माशूक अली कमी, एहसान अली मुस्तफ़ाई, मौलाना सैयद नज़र हुसैन शाह और दीगर ने रैली में सैकड़ों अफराद ने शिरकत की। रैली में शरीक अफराद ने हुकूमत के खिलाफ नारेबाजी की। इस मौके पर रैली से खिताब करते हुए मुकर्ररीन ने कहा कि कोयटा और अंदरून बलूचिस्तान बेगुनाह हज़ारा कौम समेत दीगर मिल्लत तशरीक़ के अफराद को बेदर्दी से दहशतगर्दी का निशाना बनाया जा रहा है, जिस पर हुकूमत की खामोशी इंतहाई तशवीशनाक है, जिसकी जितनी मजम्मत की जाए कम है। उन्होंने हुकूमत से मुतालबा किया है कि फिलफोर कोयटा धरने के शुरका के मुतालबा तस्लीम किए जाएँ। उन्होंने कहा कि वाक़े में मुलव्विस अफराद को करार वाक़ई सजा दी जाए और दहशतगर्दी की असल जड़ पर हाथ डाला जाए, वरना दूसरी सूरत में मुल्क भर में धरने दिए जाएंगे जो हुकूमत के खात्मे तक जारी रहेंगे। टंडोवाला यार्ड से हमारे वन प्लस न्यूज़ के ब्यूरो चीफ आजम कायम खानी की रिपोर्ट के मुताबिक 4 घंटों से कौमी शाहराह बंद, मुजाहिरीन ने धरना और खेमे लगा लिए। शदीद सर्द मौसम में मुजाहिरा जारी। बलोचिस्तान के इलाके मच में हज़ारा बिरादरी के 11 मजदूरों को कत्ल किए जाने के खिलाफ शिया उलमा काउंसिल मिल्लत जाफरिया टंडोवाला यार्ड की जानिब से कैरिया शाह के मकाम पर मौलाना गुलाम अब्बास जोयो, गुलाम रसूलुल्लाह शारी, डॉक्टर राशिद लंजवानी और दीगर की क़यादत में एहतजाजी धरना। मुजाहिरीन ने कौमी शाहराह पर खेमे लगा लिए। हज़ारा बिरादरी के मजदूरों का कत्ल मुल्क में अमन व अमान खराब करने की साजिश है। इसका मकसद फ़िरका वारियत को फ़रोग़ देना है, लेकिन अफसोस के वज़ीर आज़म इस मसले को संजीदा लेने को तैयार नहीं। कोयटा में मकतूलीन के वरसा और हज़ारा बिरादरी के सैकड़ों अफराद 4 रोज़ से सड़कों पर लाशें रखकर शदीद सर्दी में एहतजाज कर रहे हैं। हुकूमत खामोश तमाशाई बनी हुई है। अगर वज़ीर आज़म ने इस मसले पर संजीदगी का मुजाहिरा ना किया तो फिर पूरे पाकिस्तान की शाहराहें जैम कर देंगे, जिसकी तमाम तर जिम्मेदारी हुकूमत पर आयद होगी। मुजाहिरीन ने मुतालबा किया कि हुकूमत हज़ारा बिरादरी के मजदूरों के कातिलों को सख्त से सख्त सजा देकर मकतूलीन के वरसा को इंसाफ फराहम करें। मकतूलैन के वरसा को फौरी तौर पर मुआवजा दिया जाए। रहीम यार खान से हमारे वन प्लस न्यूज़ के डिस्ट्रिक्ट ब्यूरो चीफ राना बेनियामीन की रिपोर्ट के मुताबिक आज कश्मीरियों पर जुल्म सितम को 72 साल हो चुके। पाकिस्तान जिंदा मूवमेंट सिंध नवाब शाह की जानिब से कश्मीरी भाइयों से यकजहती के लिए रैली निकाली गई। रैली की क़यादत पाकिस्तान जिंदाबाद मूवमेंट के सीनियर वाइस चेयरमैन सिंध ज़ुबैर अहमद कुरैशी ने की। रैली मुकर्ररा रास्तों से प्रेस क्लब पहुंची, जहां पर भारत की जानिब से किए गए जुल्म के खिलाफ नारेबाजी की गई। सीनियर वाइस चेयरमैन सिंध ज़ुबैर अहमद कुरैशी और दीगर लोगों ने कहा कि आज भारत को कश्मीरियों पर जुल्म सितम करते हुए आज 521 दिन हो चुके। भारत सरकार कश्मीरियों पर जुल्म की इंतहा कर रही है, जिसकी हम मजम्मत करते हैं। उन्होंने कहा कि कश्मीरियों पर भारतीय मजालिम की इंतहा हो चुकी, जिस पर अक़वाम मुत्तहिदा खामोश बनी हुई है। उनको चाहिए कि वो कश्मीरी आवाम पर होने वाले जुल्म के खिलाफ आवाज़ बुलंद करें। वाइस चेयरमैन सिंध अब्दुर्रहमान ख्वाजा, ऑफिस सेक्रेटरी अकरम मलिक, डिवीज़न चेयरमैन शकील अहमद काजी, डिवीज़न वाइस चेयरमैन सैयद उस्मान अहमद शाह, डिस्ट्रिक्ट चेयरमैन महमूद शेख, डिस्ट्रिक्ट जनरल सेक्रेटरी शर्जील अहमद काजी, तालुका चेयरमैन ताशफीन खान, तालुका जनरल सेक्रेटरी दानिश खान और दीगर ओहदेदारान ने शिरकत की। पाक फौज जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद। तांदलियावाला से हमारे तहसील रिपोर्टर हैदर अली कासमी की रिपोर्ट के मुताबिक असिस्टेंट कमिश्नर नोमान अली डोगर ने पनाहगाह की बंदिश की इत्तलात पर अचानक दौरा किया तो पनाहगाह में बेसहारा, मजबूर और बेबस अफराद को एक छत तले सहूलियात की फराहमी के तमाम तरीन इंतजामात मुकम्मल पाए गए, जिस पर असिस्टेंट कमिश्नर ने बताया कि पनाहगाह का अमला 24 घंटे ड्यूटी पर मौजूद रहता है, जबकि लावारिस करार दिया जाने वाला बुजुर्ग गुलाम अली अपनी मर्जी से नर्सरी मालिक रियाज के यहाँ रिहाइश पजीर है, लेकिन वो पनाहगाह में क़याम पर राजी नहीं था। लेकिन असिस्टेंट कमिश्नर ने उसे पनाहगाह मुंतकिल कर दिया है। ये भी मालूम हुआ है कि मज़कूरा बुजुर्ग शहरी अपने अजीज़ व अकारीब के पास जाने के लिए बस जिद है। मज़कूर ने पनाहगाह में ड्यूटी अमले को हिदायत की है कि दौरान ड्यूटी कोताही हरगिज़ बर्दाश्त नहीं की जाएगी। गुलाम अली का कहना था कि वो अपने रिश्तेदारों के पास रहना चाहता है क्योंकि मैं बीमार हूँ। हमारे ज़राए के मुताबिक मज़कूरा बुजुर्ग के बारे में निजी टीवी चैनल पर गलत रिपोर्टिंग की गई।
खबर शामिल करते हैं गुजरांवाला से। वन प्लस न्यूज़ के ब्यूरो चीफ शाह हसेब मुगल की रिपोर्ट के मुताबिक थाना नौशहरा विरका पुलिस की सोशल मीडिया पर असलहे की नुमाइश करने वालों के खिलाफ कार्रवाई। मुलजिमान नाजायज़ असलहे के साथ वीडियो और तस्वीर सोशल मीडिया पर शेयर करके खौफ व हिरास फैलाते। मुलजिमान के कब्जे से 1 अदद कलाशनकोफ, 1 अदद पंप एक्शन और 2 अदद पिस्टल 30 बोर बरामद। मंडी बहाउद्दीन से हमारे वन प्लस न्यूज़ के नुमाइंदा मेहर अदनान नवीद की रिपोर्ट के मुताबिक डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन में इंतखाबात के सिलसिले में इलेक्शन मुहिम जारी है। वोटर्स की बड़ी तादाद अपने अपने उम्मीदवारों की जीत की यकीन दहानी कर रहे हैं। इस वक्त बार में 2 बड़े ग्रुप्स के उम्मीदवार मैदान में हैं। काजी ग्रुप की तरफ से उम्मीदवार बराए सदारत जाहिद यार गोंदल एडवोकेट और सेक्रेटरी के लिए सैयद यासिर अरफात एडवोकेट मैदान में है। इस वक्त वोटर्स की तादाद तकरीबन 1400 है, जिसमें 130 खवातीन वकला शामिल हैं। उम्मीदवारान इलेक्शन के दौरान वकला के ऑनर में मुख्तलिफ खाने दे रहे हैं। इस सिलसिले में काजी ग्रुप के उम्मीदवार बराए सदारत जाहिद यार गोंदल एडवोकेट और उम्मीदवार बराए जनरल सेक्रेटरी सैयद यासिर अरफात एडवोकेट की जानिब से वकला के एजाज में शानदार डिनर का एहतमाम किया गया, जिसमें वकला की कसीर तादाद ने शिरकत की। इस मौके पर उम्मीदवार बराए सदारत जाहिद यार गोंदल एडवोकेट और उम्मीदवार बराए सेक्रेटरी यासिर अरफात एडवोकेट ने वकला का शुक्रिया अदा करते हुए कहा कि अगर आप हम पर एतमाद करें तो हम आपको यकीन दिलाते हैं कि हम बार के वक़ार के लिए हर मुमकिन इक़दाम करेंगे और बार के इज्जत पर किसी किस्म की आंच नहीं आने देंगे। इस मौके पर वकला के कई ग्रुप्स ने काजी ग्रुप की हिमायत का ऐलान किया, जिससे उनकी कामयाबी वाज़ेह नजर आ रही है। खबर शामिल करते हैं मंडी बहाउद्दीन से हमारे वन प्लस न्यूज़ के नुमाइंदा अरशद महमूद से। मंडी बहाउद्दीन जहां डिस्ट्रिक्ट बार के इलेक्शन करीब आते ही गहमा गहमी उरूज पर पहुंच गई। सदर बार के उम्मीदवारों में कांटे का मुकाबला मुतवक्के। मकामी मैरिज हॉल में जोहराने का एहतमाम। मंडी बहाउद्दीन में डिस्ट्रिक्ट बार के इलेक्शन करीब आते ही वकला बिरादरी मुतहर्रिक हो गई। उम्मीदवार डिस्ट्रिक्ट बार सदर जाहिद यार गोंदल, जनरल सेक्रेटरी सैयद यासिर अरफात और नवीद गुज्जर उम्मीदवार डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन मंडी बहाउद्दीन की तरफ से बार के वकला और मुअज़्ज़िज़ अरकान में मकामी मैरिज हॉल में इलेक्शन मुहिम के सिलसिले में जोहराने का एहतमाम किया गया, जिसमें नोमान चीमा एडवोकेट ऑनर ऑफ गोल्ड मार्की, शाहजेब सफदर गोंदल, आतिफ गोंदल, सुलेमान गोंदल, मोहम्मद अदनान गोंदल, हसनैन अकरम समेत जिले भर के वकला बिरादरी ने भरपूर शिरकत की। इस मौके पर जाहिद यार गोंदल सैयद यासिर अरफात का कहना था कि वकला की जद्दोजहद के लिए काम करते रहेंगे। वकला माथे का झूमर हैं। डिस्ट्रिक्ट बार के मसाइल को तरजीही बुनियादों पर हल करवाने के लिए अहम किरदार अदा करेंगे। डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन के मशकूर हैं, जिन्होंने एजाजी पार्टी में भरपूर शिरकत की।